its compound. I think you all heard about the element carbon. Carbon is an element having the atomic number 6. The mass of carbon is 12, and carbon can exist in the nature in the various forms. It also exists in the elemental form and also exists in the combined form. In the combined form like CO2, the carbonate, bicarbonate compounds, and in the elemental form like in the form of diamond, graphite, it will exist. So it is a very essential element in our daily life. बच्चों कार्बन और इससे बने हुए कंपाउंड इन द डेली रूटीन, if you want to make the list of the items which you use in your daily routine, you will find maximum of the things are made up of carbon and its compound. So it's play a vital role in our daily life also. Even the non-living things are made up of carbon. आपकी जो बॉडी है, आपके क्लॉथ्स हैं, आप फूड जो खा रहे हैं, जो बुक्स आप पढ़ रहे हैं, everything else is made up of carbon and its derivative. Carbohydrate, proteins, all are the carbon compounds and derivatives. So it is very important element and it can form a large number of compound, and here in this chapter we will study about the carbon and its compounds. How important is carbon? Let's see. Carbon is having the atomic number 6. If you write its electronic configuration, you will write like this: 2, 4, the 2 electrons in the K shell and the 4 electron in the L shell. That means it has the 4 valence electron. इसके पास 4 valence electrons हैं. 4 valence electron है, ठीक है, लेकिन हर कोई एटम अपने आप में स्टेबल होना चाहता है. अब स्टेबल इसको होना है तो स्टेबल होने के लिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होगा. ऑक्टेट कंप्लीट कैसे करें? 2 तरीके आप सोच सकते हैं. आप सोचेंगे क्या तो ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दे या फिर 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करे. लूज करेगा तो इट कैन फॉर्म द C4 पॉजिटिव आयंस, and if gains and it can form the C4 negative ions. But students, आप पढ़ेंगे, आप पाएंगे कि this carbon neither lose neither gain. ये ना तो लूज करता है ना ये गेन करता है. It can only and only shares. ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है अपने इलेक्ट्रॉन्स अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए. और जो शेयर करता है उससे जो टाइप ऑफ बॉन्ड बनता है, that is a type of covalent bond. So in the nutshell I would say the carbon always form the covalent bond by sharing the 4 electron by completing their octet. ये बात मैंने बता दी आपको कि लूज नहीं करता, गेन नहीं करता, शेयर करता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है. बट द क्वेश्चन अराइजेस इन आवर माइंड कि why does not lose, why does not gain, ये लूज गेन क्यों नहीं करता है? लेट्स सी बच्चों, क्यों नहीं करता है. यू नो अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट कार्बन. कार्बन की एलिमेंट की स्ट्रक्चर कुछ कैसी होगी? यू नो कि बीच में न्यूक्लियस होता है and around the nucleus the cells are present. The cells are present. K shell and L shell. न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, एंड इन द K shell और L shell you know it has 2 and 4 electrons. यहाँ पर इसके पास है 6 protons and number of neutrons are 6. And you know that कि protons पर positive charge होता है and electrons having the negative charge and neutrons have no charge. तो क्या होता है, एक एटम स्टेबल कैसे होता है? एक एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिवली चार्ज को होल्ड करके रखता है, एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन एटम बिकम स्टेबल. लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 6 प्रोटॉन हैं और यहाँ पर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 and 4 टोटल नंबर. तो एक एटम स्टेबल है. लेकिन मैंने कंडीशन बताई आपको, यदि ये 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, इट गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स, then the number of electron in the outermost shell becomes 8.
8 हो जाएंगे बच्चों, और 8 हो जाएंगे तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन प्रोटॉन का नंबर तो सेम ही रहने वाला है बच्चों, इट हैव ओनली 6 प्रोटॉन्स। तो क्या 6 पॉजिटिव चार्ज आपके 10 इलेक्ट्रॉन 6 नेगेटिव चार्ज को होल्ड कर पाएगा? नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। और इस वजह से एटम क्या हो जाता है? अनस्टेबल, अनस्टेबल। सो इट डज नॉट गेन C4 नेगेटिव आयंस नहीं बनाता, because 6 protons are not able to hold the 10 electrons, that's why it does not gain the 4 electrons। अब बात आती है लूज करने की। जब भी कोई एटम, जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, इट रिक्वायर्स एनर्जी, उसको एनर्जी की जरूरत होती है। दिस एनर्जी इज नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी, द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू लूज द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड एटम। सो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, देन आफ्टर सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। सो टू लूज सच 4 electrons from the carbon atoms, it requires a large amount of energy which is normally not available. Because of these reasons, carbon does not lose and does not gain बच्चों। तो अब कार्बन के पास एक ही रास्ता बचा। To overcome this problem, carbon can only shares and it can form only the covalent bond. If it forms C4 negative ions by gaining 6 protons, not hold the 10 electrons, and it becomes unstable, or if it lose and it forms C4 positive, so energy is not available large amount of energy, large amount, so it can form only the covalent bond। तो बच्चों इस बात से मुझे क्या समझ आई? मुझे बात समझ में आई कि कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, और जो कार्बन के कंपाउंड्स होंगे तो वो सब कैसे कंपाउंड्स होंगे बच्चों? कोवेलेंट कंपाउंड। आपको याद होगी एक बात, हमने चैप्टर 3 में आयनिक बॉन्डिंग के बारे में पढ़ा था। आयनिक बॉन्ड जो कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है फ्रॉम वन एटम टू अनदर। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कोवेलेंट बॉन्डिंग के बारे में, because carbon and its compounds are a type of covalent compounds which are formed by the sharing of electrons। तो बात आ जाती है बच्चों कोवेलेंट बॉन्ड की। कोवेलेंट बॉन्ड, the bond which is formed by sharing of electrons between the atoms। और यहाँ स्पेशली हम पढ़ेंगे कार्बन और उसके एटम्स के बारे में, बिकॉज दे ऑलवेज फॉर्म द कोवेलेंट कंपाउंड्स, they will complete their octet, they will complete the bond या form the bond by sharing the electrons। so बच्चों कोवेलेंट बॉन्ड को, कोवेलेंट कंपाउंड्स को स्पेशली आई विल डिवाइड into 2 categories, homoatomic and heteroatomic molecules। homo means same and hetero means different। तो homoatomic molecules क्या होंगे? the atoms which are formed by the same type of atom like Cl2, O2, N2, H2, which are formed by the same type of atoms, and heteroatomic molecules which are formed by the different type of atoms like HCl, H2O, NH3, और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं आप, like CH4,
etc. So here one by one we will discuss the bonding in case of homoatomic and heteroatomic molecules. So let's see first in case of homoatomic molecules. I will take 3 examples. Cl2, O2 and N2. Chlorine, you know, having the atomic number 17, 287, number of valence electron are 7. So जो इलेक्ट्रॉन होते हैं दे आर प्रेजेंट इन द ऑर्बिटल रीजन ऑफ एन एलिमेंट. ऑर्बिटल वो रीजन होता है बच्चों, वो स्पेस होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की टेंडेंसी ज्यादा मैक्सिमम होती है. सो वी कैन रिप्रेजेंट दिस लाइक दिस. This is the orbital region of one chlorine and this is the orbital region of second one. And in this 7 valence electrons are present and I will represent these 7 valence electron by using the dots. By using these dots. So अब क्या होगा? It have 7, it have 7. दोनों को 1 1 की जरूरत है. Both needs one more. तो क्या होगा? Both will share 1 electron with each other and complete their octet. तो वो शेयरिंग कैसे होगी? यहाँ पर जो ऑर्बिटल्स हैं दे विल ओवरलैप, वो ओवरलैप करेंगे. द ओवरलैपिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स विल टेक प्लेस एंड दिस ओवरलैपिंग रिजल्ट इन द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. इस ओवरलैप रीजन में हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो रखेंगे जो शेयर होंगे. सो बोथ कैन शेयर 1 इलेक्ट्रॉन विद वन अनदर. देखो 6 तो इसके पास है ही, एक शेयर किया, 6 है, एक शेयर किया, टोटल एक एक शेयर किया तो 6 शेयर नहीं हुए. सो क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में जो ये वाला रीजन है, दिस इज द रीजन ऑफ बोथ क्लोरीन, जो कि ओवरलैप रीजन है. सो दे कैन फॉर्म द सिंगल बॉन्ड. सो दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज नोन एज सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड. And second one we take oxygen. Atomic number 8. Electronic configuration is 2 6. Having the 6 valence electron. Orbital region of this oxygen. The second one oxygen. Both are having the 6 valence electron and we will represent these with the help of dots. The overlapping of the orbitals will take place. दोनों के पास 6 है. Both needs 2 more. तो दोनों क्या करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे. It share 2 more. 4 इसके पास रहेंगे, 4 इसके पास, टोटल इसके पास भी 8 हो गए, इसके पास भी 8 हो गए. ओवरलैप रीजन में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो दोनों एटम के होंगे जो आपस में ओवरलैप या शेयरिंग कर रहे हैं बच्चों. सो ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन दोनों 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, तो दे कैन फॉर्म द डबल बॉन्ड. सो इट इज नोन एज डबल कोवेलेंट बॉन्ड. थर्ड आता है हमारा N2, नाइट्रोजन. एटॉमिक नंबर 7. इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2 5. नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर 5. सो नाइट्रोजन के पास है, इसका ये अपना ऑर्बिटल रीजन, सेकंड नाइट्रोजन का अपना ऑर्बिटल रीजन. क्या करेगा? इट हैव 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इट आल्सो हैव 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. बोथ द नाइट्रोजन नीड्स 3 मोर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट. सो बोथ जो दोनों के दोनों नाइट्रोजन है दे विल ओवरलैप देयर ऑर्बिटल्स. तो दोनों 3 इलेक्ट्रॉन अपने शेयर करेंगे टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट. सो 3 bonds will be formed between the 2 nitrogen atoms known as a triple covalent bond. तो बच्चों को ये था कोवेलेंट बॉन्ड होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल में. दैट मे बी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, मे बी डबल एंड मे बी ट्रिपल, डिपेंड अपॉन द टेंडेंसी कि उसको ऐड करने के लिए कितने शेयर करने की जरूरत है. इफ इट शेयर ओनली वन पेयर 1 1, इट फॉर्म सिंगल. If it share 2, it can form double. If it can share 3 electrons, so it can form the triple covalent bond. This is all about homoatomic. Now I am going to take the examples of heteroatomic molecules, means having the different atoms. So how they get formed, the covalent bond, let's see. I take the for one example like water.
methane. Methane having the formula CH4. How this is formed? बच्चों, in this carbon with their orbital, इसके पास अपने 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 हाइड्रोजन are linked with this, all are present with their orbitals. Each hydrogen is having 1 electron. अब मैं सोचूं कैसे कि हर किसी का ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट हो जाए. यू नो अबाउट हाइड्रोजन. हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के शेल में होते हैं और के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसका ऑक्टेट नहीं, उसका डुप्लेट कंप्लीट होता है बच्चों. तो कार्बन 4 और चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए. सो इसको भी एक चाहिए. दिस वन आल्सो नीड्स 1 1 1. So it can share 1, it can share 1, it can share 1, it can share 1, और कार्बन 4 शेयर कर लेगा, उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा. और ये शेयरिंग कैसे होगी? बाय द ओवरलैपिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स. हाउ दिस टेक प्लेस? क्या होगा? ये कार्बन है, कार्बन कैन ओवरलैप विद दीज 4 हाइड्रोजन्स, विद दीज 4 हाइड्रोजन ओवरलैपिंग हो जाएगी. ओवरलैप रीजन में हमें शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रखना है. सो दिस विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द बॉन्ड और मॉलिक्यूल. सो कार्बन हेयर कैन फॉर्म द सिंगल बॉन्ड विद दिस हाइड्रोजन, विद दिस. सो दिस इज ए मीथेन मॉलिक्यूल हैविंग द 4 सिंगल कोवेलेंट bonds. Each hydrogen gets share 1 electron with the carbon atom, carbon electrons. Similarly, I take one more example in the last. Suppose I take the case of CO2. CO2, it is also a carbon compound. Carbon, इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. इसको 4 की जरूरत है, इसको 2 की जरूरत है. इट नीड्स 2 मोर. 2 इसके साथ शेयर करेगा, 2 इसके साथ, क्योंकि इसको तो 4 की जरूरत है, 2 इसको जरूरत है, 2 इसको, तो दोनों 2 शेयर कर लेंगे. कार्बन ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होगी, ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होगी. 2 कार्बन के इलेक्ट्रॉन इधर शेयर होंगे, 2 इधर शेयर होंगे. ऑक्सीजन के पास टोटल 6 थे, 2 शेयर हो गए, 4 रिमेन. तो कार्बन यहाँ पर 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है शेयर्ड पर्पज से. सो यहाँ पर इट कैन फॉर्म द डबल बॉन्ड विद दिस कार्बन, सॉरी ऑक्सीजन, एंड इट ऑल्सो फॉर्म द डबल बॉन्ड विद दिस CO. सो इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ CO2 molecule. In the last, I will take one more example, ammonia. Ammonia is what? NH3 molecule. How the bonding or structure will be formed? NH3, nitrogen, 5 valence electron, 7 atomic number, hydrogen 1 1 and 1. नाइट्रोजन को 3 की जरूरत है. Each hydrogen requires 1 more. सो क्या होगा? नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन ओवरलैप करेंगे, तीनों हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे नाइट्रोजन के साथ, एंड दे कैन फॉर्म द 3 सिंगल बॉन्ड विद द 3 हाइड्रोजन, मींस 1 बॉन्ड विद द 1 हाइड्रोजन, एंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ए अमोनिया मॉलिक्यूल. So in this way, students, the bond will be formed in the homo or hetero type of molecules. In the next video, we will study more about the covalent bonding, the properties of the covalent compounds, the comparison of the ionic and covalent bonding. In this, we have studied about the carbon covalent bond banata hai, and how this covalent bond is formed, how the covalent bond is formed between the homoatomic and heteroatomic molecule. With this, I will end the video. I hope all you enjoy. Thank you, students.